Okay, so now today we'll start our next unit. Okay, so in that the first part is vector differential calculus. Simply, we learn how to take a derivative of. Okay, so I hope you all are aware of the basic related with the vectors. Okay, just 1 minute. Okay, ओके क्या क्या लर्न किया आपने वेक्टर में व्हाट यू नो अबाउट वेक्टर यस एनीवन व्हाट यू नो अबाउट वेक्टर्स क्या क्या आपने अभी तक लर्न किया यस व्हाट इज मीन बाय वेक्टर what is meant by vector what is the difference between vector and scalar yes am I audible or not okay हाँ so what do you know about vector या क्या क्या आपने लर्न किया 11 12th में क्या क्या बेसिक वेरी गुड करेक्ट यस यस और ओके 11 12th में आपने क्या क्या लर्न किया था हैव यू लर्न डॉट प्रोडक्ट हैव यू लर्न क्रॉस प्रोडक्ट कर्ल ऑफ वेक्टर डाइवर्जन ये सारी चीजें हो गई थी क्या आपकी yes yes how to take sum of two vectors okay uh, like that okay so initially first we quickly revise all those parts okay उसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाले मींस ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले कि डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करो बट एट देन वी नीड ऑल दिस थिंग्स while solving the problems on the vectors okay basically अभी in this first chapter we focus mainly on the derivatives of the vectors okay so we have given a vector function and you have to find its derivative it is very similar to your regular derivative okay so we'll go one by one first this you can say the prerequisites for the vectors okay initially we cover the prerequisites for the vectors and then we actually take the problems on vector differentiation that is our first section okay so the first topic is a scalar quantity okay a quantity which has magnitude only it's called a scalar quantity like temperature time speed etc okay next is a vector quantity okay a quantity which has both magnitude okay as well as direction it's called as vector quantity our focus is on this only that is force velocity acceleration etc correct next is unit vector now this plays a very important role okay yes yes any problem someone please check your mic shivam Hmm. So now next part is unit vector. Okay, this plays very important role, especially in this unit. Okay, so a vector which has magnitude 1 or modulus value is 1 is called as unit vector, and unit vector in the direction of this AB bar. Okay, AB bar is any given vector is actually calculated by that vector divided by its modulus. Okay, so what is the definition of unit vector? So in general, it is denoted by I think a cap. Okay so this cap means what this is a unit vector okay and how you calculate unit vector in the direction of a bar ठीक है आप ऐसे भी नोटेशन यूज कर सकते हो वेक्टर के लिए या आप बस एक सिंगल बार भी लिख सकते हो सो डिपेंड ऑन यू कोई भी नोटेशन आप फॉलो करो यहाँ पे मैंने बार का ही किया या कुछ जगह पे मिक्स हो सकता है ठीक है बट दिस आर दी बोथ दिस गिव्स यू द वेक्टर्स ओके दिस इज जस्ट द नोटेशन फॉर अ वेक्टर तो आप ये एरो का भी यूज कर सकते हो या आप जस्ट कैन ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑन हियर ओके तो आप एक लाइन यूज करो आप एरो यूज करो डिपेंड ऑन यू okay but what is the difference between this bar and cap okay so cap means what that vector is a unit vector and what is the definition of unit vector so unit vector is defined as that vector divided by its modulus this is the definition of unit vector or simply a unit vector in the direction of a bar is actually a bar upon their modulus okay आगे भी कुछ examples में लेने वाला so we'll go in detail next is position vector okay so how you calculate a position vector simply
if I consider any one point in a space, let us take p of x, y, z. Okay. Then how you can find the position vector OP bar? What is this value? What is OP bar? Yes, what is position vector OP bar? Okay, just check. क्यों नहीं हो रहा है? Just 1 minute. Okay. So what is our next question? Consider any random point in a two-dimension space or in a three-dimension space. So this is the point in three-dimension space, x, y, and somewhere here you can consider this z. Correct. So what is the position vector? Okay, so this position vector is actually a vector from that point and origin. Okay, it's a vector from point and origin. And what is that position vector? So what is that OP bar? You can find OP bar. Yes, so it is the terminal point minus initial points. Okay, so x minus 0 I cap, okay, plus y minus 0 j cap plus z minus 0 k cap. ओके मैं फिर से ये बोल रहा हूँ, कुछ जगह पे कैप होगा, कुछ जगह पे बार होगा, ओके एरो होगा, बट आपको वो मीनिंग समझ में आना चाहिए. आई जे के जहां पे भी ये नोटेशन आने वाले, ऑल दिस आई जे केज आर द यूनिट वेक्टर्स, all these ijk's are the unit vector in the directions of what is I bar? What is I bar? What is I bar? Anyone? यहाँ पे मैंने पोजीशन वेक्टर को मेंशन किया है, ठीक है. हाँ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब ये आपका एक्स एक्सिस है, वन डिस्टेंस पे जो वेक्टर आ जाता है, दिस इज योर आई आई कैप और आई बार. कैप का मीनिंग क्या होता है? इट्स अ यूनिट वेक्टर, दैट इज अ स्पेसिफिक नोटेशन टू डिनोट अ यूनिट वेक्टर, बट यू कैन राइट आई बार, आई कैप, क्योंकि एग्जाम में भी किस फॉर्म में होगा हमें क्लियर नहीं है, तो आई कैप आई बार कुछ भी वहां पे आ सकता है, बट जनरली वी फॉलो दिस आई कैप नोटेशन, कि वहां से क्लियरली समझ में आता है इट्स अ यूनिट वेक्टर. सो इट्स अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, j cap is the direction of y axis and k cap is the unit vector in the direction of z axis. ठीक है. And how you find a position vector OP bar? It is just the terminal point minus initial point, that is x minus 0, y minus 0, z minus 0 into I bar, j bar and k bar. Okay, yes, it's a यहाँ पे आपने एक और रिजल्ट देखा भी होगा. Okay, what is a vector? A vector joining the points 1, 2, 3 and 0, 1, 2. Okay, how you find a vector? Okay, we join the points 1, 2, 3 and 0, 1, 2. तो आपको करना क्या है? फाइनल पॉइंट माइनस और टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, सो 0 minus 1 into I bar plus 1 minus 2 into J bar plus 2 minus 3 into K bar. This is actually a vector in the vector from point 1, 2, 3, from point P to point Q. ठीक है, ये बेसिक चीज़ आपने 11th-12th में कहीं पे ना कहीं पे आपने लर्न की होगी, हमें इतना कुछ इन डिटेल में नहीं जाना है. ठीक है, बस क्विकली मैं कुछ चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ. नाउ नेक्स्ट इज अलजेब्रा ऑफ द वेक्टर्स. ओके, सो दिस पोजीशन वेक्टर इज क्लियर टू एवरीवन. ओपी बार का मीनिंग क्या होता है? इट्स जस्ट अ वेक्टर फ्रॉम दैट पॉइंट एंड ओरिजिन. ओके, एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय आर बार. This r bar gives you the position vector, which is xi bar plus yj bar plus zk bar. So always remember the value of r bar is xi bar plus yj bar zk bar. It's a general position vector in three dimension space. It is actually a general position vector in three dimension space. क्योंकि ये चीजें आगे आपको यूज करनी है. ठीक है. Next is algebra of the vectors, means how you can add any two vectors. So if a bar is this, b bar is this, then addition a bar plus b bar is just the component wise we have to add these numbers, a1 plus b1, a2 plus b2 and a3 plus b3. Okay, that is the sum of these two vectors. Okay, you can also represent this value graphically. So that graphical meaning is there. This is a bar, this is b bar. Okay, so here just draw a vector parallel to b bar. So from here just draw a vector parallel to a bar. So whatever intersection is there, okay, a vector from this point to this point is actually gives you the a bar plus b bar. Okay, I hope you all are aware about this. Basic questions आपने already 11th-12th में cover किए होंगे. ठीक है. In a similar way, now next is negative vector. So if a bar is your given vector, then it's negative vector, that is minus a bar is actually minus. Simply आपको minus से multiply करना है. That is minus a1 I bar minus a2 j bar minus a3 k bar and so on. Okay, so
दिस इज योर ए बार एंड दिस इज योर माइनस ए बार, दिस इज योर माइनस ए बार। ओके, नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ए बार माइनस बी बार, तो आपको वही करना है, कंपोनेंट वाइज सब्ट्रैक्ट करना है, ए वन माइनस बी वन, ओके, ए टू माइनस बी टू, ए थ्री माइनस बी थ्री, आई बार जे बार एंड के बार। ओके, ये भी आप ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हो कैसे, क्योंकि आपको ए बार प्लस बी बार का ग्राफिकल मीनिंग पता, तो उसमें आप एडजस्ट करके भी ये सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हो। ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इस पे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इट्स अ बेसिक पार्ट दैट यू ऑलरेडी लर्न इन योर 11th एंड 12th, और कुछ ज़्यादा हमें इस टॉपिक में भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, बट आपको बस ये पता होना चाहिए कि हाउ वी ऐड एनी टू वेक्टर्स, हाउ वी सबट्रैक्ट एनी टू वेक्टर्स, ओके, लाइक दैट। फॉर एग्जांपल, if I consider one vector 3i bar, 2i bar 3j bar plus 4k bar, so this vector plus like say minus I bar plus 2j bar minus k bar. So how we add these two vector? Just consider the component wise addition, and if it is if subtraction is there, just consider the component wise subtraction. So 2 minus 1 is just a 1, so 1 into I bar, then 3 plus 2 is 5, so 5 into j bar, and 4 minus 1 is 3, so 3 into k bar. So this is the sum of two vector, and if I consider minus here, then just do the subtraction where you will get the subtraction of two vector. Okay, this is the this is the mathematical approach. Graphically भी आप इसको plot कर सकते हो। ठीक है, so I'm not going in detail about this graphical view. यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम से भी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। Okay. So this is the algebra of vectors, how to add any two vectors, how to subtract any two vectors. Next is magnitude of a vector. Okay, so the magnitude of what is the graphical meaning of magnitude of a vector? So if I draw this vector a bar somewhere here, this is my a bar, correct? So what is the magnitude of a bar? It is denoted by modulus of a bar. What is the graphical meaning of magnitude of a bar or modulus of a bar? Anyone? What this values gives you? Modulus of a bar. Length from what? From origin. Okay, so this whatever distance is there, this distance is actually modulus of a bar. Okay, so length of that vector from origin. Okay, that is nothing but modulus of a vector. So it's a real number. It's a real number. It's a distance because that gives you the distance. Okay, so obviously वो value आपकी क्या होगी? Real number होगी। Okay, so if a bar is equal to a1 I bar plus a2 j bar plus a3 k bar, then modulus of a bar is denoted by this notation, mod of a bar, or it is just denoted by just a, जहाँ पे भी जिस भी एग्जाम्पल में बस a लिखता हूँ, इसका मीनिंग क्या है? It is actually modulus of a bar. A means modulus of a bar. So these are just the notations. So remember this, and it is calculated by the formula under root of a1 square plus a2 square plus a3 square. Okay. So for example, if I consider like say 2i bar minus 2j bar plus k bar, then modulus of a bar is actually equal to under root of 2 square plus this next number square plus 1 square, that is 4 plus 4 8 plus 1 9, that is under root of 9, which is 3. This is the modulus of a bar. ठीक है, next is product of two vector. Okay, so what are the possible products that you aware in vectors? कौन कौन से प्रोडक्ट आपको पता है? यस यस यस, वेक्टर्स में प्रोडक्ट आपको पता है? डॉट एंड क्रॉस, these are the only two possible product that we can perform on vectors. ठीक है, so the first is dot product. ये चीजें आपको सारे मतलब आगे एग्जाम्पल्स में ये सारी ये जो भी डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, मॉड्यूलस आ रहा है, यूनिट वेक्टर आ रहा है, ये सारी चीजें आपको आगे यूज करनी है। इन पे स्पेसिफिकली ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसलिए मैं क्विकली ले रहा हूँ। इट इज जस्ट द प्रीरिक्विजिट, थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आ जाता है तो भी आगे ये फिर से रिवाइज होने वाला है इन डिटेल। ठीक है, तो कुछ ज्यादा भी टाइम इसमें वेस्ट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच लेक्चर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर. So the first product is dot product. ठीक है, it is denoted by this a bar dot b bar. Okay, so in every example just assume that a bar जहाँ पे भी मैं लिखता हूँ ना, तो a bar का मीनिंग क्या होता है
A1 इंटू आई बार प्लस A2 इंटू जे बार प्लस A3 इंटू के बार, जहाँ पे भी मैं लिखता हूँ। अभी मुझे ज़्यादातर बार की आदत है, बट एक्चुअली यहाँ पे आपको कैप लिखना है। तो शायद ये मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मुझे वो आदत ही नहीं है। सो बट इन जनरल जहाँ पे भी आई जे के आता है ना, दैट दोज वेक्टर्स आर एक्चुअली यूनिट वेक्टर्स, सो इट्स बेटर टू राइट कैप स्पेशली फॉर दोज वेक्टर्स आई जे के वेक्टर्स, ठीक है। एंड बी बार इज एक्चुअली, जहाँ पे भी बी बार आता है उसका मीनिंग क्या होता है, बी वन इंटू आई कैप प्लस बी टू इंटू जे कैप प्लस B3 इंटू के कैप, ठीक है। Okay, so how you define the dot product? So a bar dot b bar is actually equal to modulus of a bar, or you can say magnitude of first vector into magnitude of second vector into cos theta, where theta is the angle between these two vectors. So from that you will have a formula for angle between two vectors. So dot product की definition से आपके पास एक result आ जाता है, okay. Easily find the angle between two vectors. So the dot product is defined by this, and from this what is the angle, आपके पास एक और फॉर्मूला आ जाता है which is angle between two vectors a bar and b bar, and that formula is what? So cos theta is equal to their dot product divided by modulus of first vector into modulus of second vector, और यहाँ से फिर आपको थीटा मिल जाएगा, ठीक है। सो ये भी आपने देखा है ऑलरेडी 11 एंड 12th में। ओके, इसका ग्राफिकल मीनिंग भी मैंने दिया है यहाँ पे, ओके। पीपीटी में इन डिटेल में सारी चीज़ें है, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट सेमेस्टर में मैंने इन डिटेल में टॉपिक लिया था। सो एवरीथिंग इज देयर इन दिस पीपीटीज, डिटेल्स में सारी चीज़ें। इफ यू हैव इंटरेस्ट यू कैन read in detail. Okay, this is the graphical meaning of a bar dot b bar, ठीक है। अगर आप डायग्राम, हाँ ओके, हाँ आप यहाँ पे देखो। सो दिस इज माई a bar, दिस इज माई b bar, just consider projection of this b bar on this a bar, that value is b cos theta. तो यहाँ पे जो ये टर्म, ये जो क्वांटिटी यहाँ पे आप देख रहे हो ना, b cos theta, it is actually projection of b bar on vector a bar multiplied by magnitude of a bar. This is the graphical meaning of dot product. Okay, so it's a projection of one vector on other vector multiplied by the magnitude of other vector. Okay, this is the meaning of dot product, ठीक है। Okay, next is मतलब यहाँ पे a cos theta b लिखते हो तो it's a projection of vector a bar on b bar multiplied by magnitude of the other vector, ठीक है। Now there are some results related with this dot product. Okay, first is what? The dot product is always a scalar quantity. आपको पता है डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आ रहा था? इट्स अ मॉडुलस ऑफ फर्स्ट इंटू मॉडुलस ऑफ सेकंड इंटू cos theta, and all three values are real numbers, so it's a scalar value. So in general dot product is a scalar quantity, hence it is known as scalar product or inner product. ये भी वर्ड्स आपको आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट यूजिंग दिस डॉट प्रोडक्ट definition. So cos theta is equal to dot product of these two vectors divided by the product of their modulus, correct? Then third result that you can generalize from this dot product is this. ये आपको ज्यादातर केस में ये रिजल्ट आपको यूज करना है, दिस इज फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ठीक है। So you take a dot product of any two vectors. So if a bar is this, b bar is this, then a bar dot b bar is actually the component wise product of component wise, you have to take this component wise product and add these numbers, like say a1 b1 plus a2 b2, just take the component wise product and add these numbers, and plus a3 b3, ठीक है। So dot product a bar dot b bar is equal to a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. फॉर एग्जाम्पल हर एक क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको ये चीजें कैलकुलेट करनी है। सो a bar is equal to say I bar minus j bar plus 2k bar, and b bar is equal to say 2i bar plus 2j bar plus k bar. Then what is the dot product of these two vector? करना क्या आपको? just take the component wise product. So 2 into 1, i का आपको i के साथ ही प्रोडक्ट लेना है। So 2 into 1 is just a 2, correct? Plus 2 into minus 2 is just minus 2, and plus 2 into 1 is 2, ठीक है। So that value is 2. So this is the dot product of this two vector, ठीक है। Many results related with this. Dot product is commutative, ठीक है। तो a bar dot b bar is always equal to b bar dot a bar, okay।
provided these vectors are constant vector. These vectors are, ठीक है, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अभी के लिए छोड़ दो. इन जनरल दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू. इन जनरल दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू. ओके, आपको आगे आने वाला है वो रिजल्ट, उस टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है. सो राइट नाउ दिस डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. ओके, वी हैव real vectors, you can say. Okay, this a bar is a real vector where this x I bar plus y j bar plus z means what, ये जो x y z आप ले रहे हो यहाँ पे, these are the real numbers. Okay, so in case so in real this dot product is commutative. Okay, but अगर आप अपना सेट की साइज अगर आप इंक्रीज करते हो, और इन जनरल if I'm talking, then in general this dot product is not commutative. ठीक है, तो वो कैसे होता है मैं आपको आगे with proper example I will explain that why this dot product is not commutative for a set of functions. Okay, set of function में ये चीजें true नहीं होती. Okay, this result is true only for a real vectors. Okay, then dot product of I bar with I bar है ना, ये क्या आता है, 1 आता है. कैसे? Why this product is 1? Because it is equal to modulus of first vector into modulus of second vector into cos of angle between these two vector. But दोनों vector similar है, तो उन दोनों में angle क्या होगा, 0. And since it is a unit vector, so I bar का modulus 1, I bar का modulus 1, cos 0 is 1, so 1 1 1, that value is 1. Okay, similarly for j bar dot j bar, k bar dot k bar, I bar into j bar में भी same logic use करो. ये dot product क्या आने वाला है, modulus of first into modulus of second into angle between these two vector. So what is the angle between I bar and j bar? What is the angle between I cap and j cap? 90 degree, because these are the components of x y z. x y z में तीनों में angle 90 degree है, so cos 90 and cos 90 is 0. Therefore that dot product is 0. ठीक है, तो ये आपको देख के ही ये सारी चीजें क्लिक होनी चाहिए, क्योंकि एक और सेक्शन है आपको यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा आगे वेक्टर टॉपिक में, दैट इज वेक्टर आइडेंटिटीज. ये डायरेक्टली आपको ये सारी चीजें वहां पे ऑब्जर्व करनी है, कहाँ पे 0 आ रहा है, कहाँ पे 1 आ रहा है. ठीक है, ये सब कुछ बेसिक चल रहा है, इस पे कुछ ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला, आगे हायर लेवल का वेक्टर आपको आने वाला है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, a component of a bar in the direction of another vector u bar is given by a bar dot u cap. So this part is there in your syllabus. This is nothing but directional derivative. डिटेल में लेने वाला हूं मैं आगे. So right now I just skip this. ठीक है, okay, the explanation is there, but I will not go in detail. ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था, तो कोई उतना कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है. ओके, so this is all about the dot product. Next is cross product. Okay, then the cross product of two vectors, that is a bar and b bar, is defined as the modulus of first into modulus of second into sine theta, where theta is the angle between these two vectors, into n cap. So what is this n cap? Here this n cap is actually a unit vector, okay, perpendicular to the plane a bar and b bar. Okay, I can show you this using this diagram. Okay, so a bar cross b bar is this is your plane formed by a bar and b bar, and n cap is actually a unit vector, okay, which is perpendicular to this plane. So this n cap is a unit vector which is perpendicular to this plane formed by a bar and b bar. Okay, can anyone tell me what are the possible values for this n cap? Or what are the possible values or what are the possible vectors which is perpendicular to this plane? कितनी possibilities वहां पे मिलेंगी आपको? How many vectors are there which is perpendicular to a bar cross b bar? Huh? Yes? All right. What are the possible or what is that count? How many vectors are perpendicular to the plane formed by a bar and b bar? That is a bar cross b bar. This is one vector. Other vector is in the direction of this. Okay, this is minus n cap. So how you decide the direction? How you decide the direction of this n cap? ऐसे एमसीक्यूज आपने देखे होंगे ना कि कितने वेक्टर्स मतलब कंफ्यूजन करने के लिए ए बार गिवन होता है, बी बार गिवन होता है. नाउ द नंबर ऑफ वेक्टर्स विच इज नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स विच इज परपेंडिकुलर टू ए बार क्रॉस बी बार, तो दैट काउंट इज ऑलवेज 2. ओके, हाँ बोलो,
हाउ यू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ दिस एन कैप, कैसे डिसाइड करते हो, यूजिंग विच रूल? या आपने फिजिक्स में तो बहुत बार देखा होगा, कौन से रूल से आप ये डायरेक्शन डिसाइड करते हो? हाँ, अरे कौन से रूल से आप एन कैप की डायरेक्शन डिसाइड करते हो? यू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ दिस एन कैप, राइट हैंड थंब रूल। अभी कैसे यूज करना है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि देर इज सर्टन रूल। आई थिंक एक स्क्रू रूल भी होता है, ठीक है। देर इज सर्टन रूल बाय विच ओनली यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस एन कैप। रैंडम नहीं लेते हो आप, ठीक है। सो राइट हैंड थंब रूल से यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस एन कैप। ओके, दो ही पॉसिबिलिटीज, आइदर इट इज पॉजिटिव आइदर इट इज नेगेटिव। ओके, ये आपको बस डिसाइड करना है यूजिंग दिस राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इट इज देयर लेटर ऑन, आगे एंड के टॉपिक में ये सारी चीजें आपको यूज करनी, तो जहाँ पे एक्चुअली आपको यूज करना है ना, उस टाइम पे मैं इन डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी एक्सप्लेन नहीं किया तो आपको उतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा। वहाँ पे आपके सामने डायग्राम रहेगी, एरिया गिवन होगा, प्लेन आपके सामने रहेगा, तो आप इजिली वो एन कैप कैलकुलेट कर पाओगे। देयर इज वन थ्योरम रिलेटेड विद दिस एन कैप, दैट इज नथिंग बट स्टोक थ्योरम, आगे आने वाला। तो स्टोक थ्योरम में आपको ये एन कैप कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हर एक टॉपिक का कहीं पे ना कहीं पे यूज करना ही है। नेक्स्ट इज ए बार क्रॉस बी बार इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। हेंस इट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। एंड जैसे डॉट प्रोडक्ट में आपने देखा डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, बट दैट रिजल्ट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो फॉर क्रॉस प्रोडक्ट ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी बार क्रॉस ए बार। सो दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट एट ऑल कम्यूटेटिव, ठीक है। ये भी रिजल्ट आपको आगे यूज करना है। The cross product of two similar vector is zero. Why? Because that angle is zero and cross product में sin आता है and sin zero होता है zero. Since the angle is zero and cross product में sin आता है and sin zero is zero, therefore a bar cross a bar is always zero for any given vector. And जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट में देखा था a1 a2 b1 b2 एंड C1 C2 से आप डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हो। इन सिमिलर वे, इफ A bar is this, B bar is this, how you find the cross product? So that is defined in terms of determinant. Okay, well in first row just consider I bar, J bar, K bar. In second row consider the component of first vector, that is A bar, and in third row consider the component of second vector, that is B bar. ठीक है, एंड जस्ट कंप्लीट दिस डिटर्मिनेंट, दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, ठीक है। और फिर ये बेसिक रिजल्ट आई बार क्रॉस आई बार सेम एंगल है, एंगल जीरो है, सिमिलर वेक्टर है, देयरफॉर वैल्यू इज जीरो बिकॉज साइन थीटा आता है वहां पे। यहाँ पे आप देखो आई बार क्रॉस जे बार, ठीक है। आई बार क्रॉस जे बार को कैलकुलेट करके देता हूँ आपको। दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ आई बार into modulus of j bar into sin theta. But what is the angle between these two vectors? Since that angle is 90 degree, so consider 90 degree into n cap. Okay, so this modulus is 1, this modulus is 1, sin 90 is 1. So what is the unit vector or what is a vector which is perpendicular to this I bar cross j bar? ठीक है, so by right hand thumb rule, ठीक है, आपको पता है I bar cross j bar को अगर मैं ये ड्रॉ करता हूँ, इट्स लाइक y एक्सिस सिंपली, ठीक है। x एंड y एक्सिस को क्या कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर आता है? z एक्सिस। z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू x, परपेंडिकुलर टू अ प्लेन फॉर्म बाय x एंड y एक्सिस। ओके, बट आपको ये देखना है कि वेदर इट इज अ प्लस k बार और वेदर इट इज अ माइनस k बार, ठीक है। दैट यू हैव टू डिसाइड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। सो फॉर आई बार क्रॉस j बार दैट वैल्यू इज k बार, ओके। व्हाट अबाउट j बार क्रॉस i बार? एनीवन? व्हाट इज j बार क्रॉस i बार? ये एन कैप की वैल्यू यहाँ पे के बार आती है, देयरफॉर योर फाइनल आंसर इज जस्ट के कैप, ओके। बट व्हाट हैपन इफ आई कंसीडर जे बार क्रॉस आई बार? आपको पता है दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स आई बार क्रॉस जे बार, दिस इज द रिजल्ट, ओके। क्रॉस प्रोडक्ट में ये रिलेशन होता है, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी बार क्रॉस ए बार एंड दैट इज इक्वल टू माइनस इनटू के कैप, बिकॉज आई बार क्रॉस जे बार का के कैप है। यहाँ से भी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको थंब रूल से डिसाइड करने की, कहाँ पे पॉजिटिव आता है कहाँ पे नेगेटिव आता है। ये भी आपको पता होगा कि आई से स्टार्ट करना है आपको ऐसे। अभी इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू शो दिस राइट एंड थंब रूल, कैन चेक द वीडियो ऑल्सो, और मैं लेटर ऑन आपको दिखाता हूँ प्रॉपर
ठीक है, आई से आपको स्टार्ट करना है, आई से जे तक, ओके, तो थंब आपका कहाँ पे आएगा, अपर डायरेक्शन में आ जाएगा, देयरफॉर यू विल गेट के बार। जब आप जे से स्टार्ट करते हो, फ्रॉम जे टू आई, ओके, थंब आपका लोअर डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, बॉटम में जाएगा, देयरफॉर इन दैट केस योर साइन इज नेगेटिव, ठीक है, ओके। हाँ, now these are the important results. So 1 minute. Next is what? If A bar and B bar are parallel, if these two vectors are parallel, then their cross product is 0. Okay, and if these two vectors are perpendicular, then their dot product is 0. Okay. Next is scalar triple product or box product. Okay. Simply ये दो वेक्टर का प्रोडक्ट था, ये जो अभी तक डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज फॉर two vectors only. Now what about three vectors? So if you have three vectors, in that case you can define scalar triple product, or you can say box product, and there is one more definition, that is vector triple product. Okay, दो वेक्टर में डॉट एंड क्रॉस है, थ्री वेक्टर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन है, ठीक है। सो फर्स्ट लेट मी डिफाइन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. So the scalar triple product of these three vectors by a box, just write down a bar space b bar space c bar, and it is nothing but the cross product between first two vectors dot product with third vector, that is a bar cross b bar dot with c bar. This is the definition of scalar triple product. You can't change this bracket also. Okay, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, दिस इज नथिंग बट अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ओके, अब ये ब्रैकेट चेंज होता है तो क्या चीजें होगी मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, ठीक है. एंड इट इज डिफाइन एज, ओके, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में करना क्या है, फर्स्ट रो में जो आपका फर्स्ट वेक्टर है उसके कंपोनेंट आ जाएंगे, सेकंड रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट आ जाएंगे, थर्ड रो में थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट आ जाएंगे, ठीक है. ऐसे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप कोई भी मतलब इफ यू इंटरचेंज दिस सीक्वेंस, मतलब पहले अगर आप b1 लेते हो, बाद में अगर आप a1 लेते हो, तो आपको पता है डिटरमिनेंट आपका माइनस से डिफर होगा. इन दैट केस दिस टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल. इसलिए आपको ये सीक्वेंस चेंज नहीं करनी है, जिस सीक्वेंस में आप लिख रहे हो उसी सीक्वेंस में आपको जाना है. पहले a बार के कंपोनेंट, फिर b बार के, फिर c बार के, देन यू आर then only will get the correct answer. If you change this sequence, your values also get changed. ठीक है, yeah. So those results are there. ठीक है. So this scalar triple product or box product, this gives you the equal values in a cyclic change. Means अगर आप cyclic way में उसको change करते हो ना, okay, तब determinant में कुछ भी effect नहीं आने वाला. Like a bar b bar c bar, this is equal to b bar c bar a bar, this is equal to c bar a bar b bar. Okay, इन तीनों केस में यू विल गेट सेम वैल्यूज. ठीक है. सो अगर आपको चेंज करना है तो साइक्लिक वे में चेंज करो. डोंट राइट लाइक दिस, बी बार ए बार सी बार. ओके, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए बार बी बार सी बार, ऐसा होने वाला. ठीक है. ओके, हाँ, ब्रैकेट का आपको मैं बोल रहा था. सो ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार. ओके, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इंटरचेंजेबल. तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो बॉक्स में. ठीक है, ब्रैकेट में. नेक्स्ट इज व्हाट, इफ टू वेक्टर्स आर सिमिलर एज इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट. तो डिटरमिनेंट में अगर दो रोज आपके इक्वल आ जाते हैं तो आपका डिटरमिनेंट 0 आता है. दैट इंप्लाइज योर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज आल्सो 0. ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आल्सो इंपॉर्टेंट. ये आपको चाहिए वेक्टर आइडेंटिटीज में, ये लास्ट सेक्शन में आने वाला है. सो ए बार क्रॉस इन ब्रैकेट बी बार क्रॉस सी बार, इसी फॉर्मेट में चाहिए. ब्रैकेट जैसे मैं यहाँ पे कंसिडर मैंने किया है उसी फॉर्मेट में ब्रैकेट कंसिडर करना है. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एनी प्रॉब्लम? ओके, मैं बोल रहा हूँ बहुत देर से, तो हाँ हाँ. तो ये प्रोडक्ट आपको इस फॉर्म में याद रखना है. अभी मैं स्पीडली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इतना कुछ आपको आगे यूज नहीं करना है. हार्डली 1 और 2 स्टेटमेंट आगे आने वाले. ओके, बट जस्ट फॉर दैट आई नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल. ठीक है, डोंट वरी. और एग्जाम्पल भी मैं लेने वाला हूँ, तो अभी बस फॉर्मूले क्विकली देखो. We'll directly see some examples on all these topics. Okay, so the vector triple product is defined by this a bar cross in a bracket b bar cross c bar. And how you find this value? तो करना क्या है, first with third, take a dot product of first with third into second minus first with second dot product of first with second into third. इसी सीक्वेंस में ये चीज आप याद रखो. ठीक है, इन दिस वे वी कैन फाइंड द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. ठीक है, फर्स्ट विथ थर्ड, ये आगे आपको यूज करना इन वेक्टर आइडेंटिटीज. तो ये रिजल्ट 100% आगे आने वाला है.
सो फर्स्ट विथ थर्ड माइनस फर्स्ट विथ सेकंड इनटू रिमेनिंग वेक्टर्स, ठीक है। हाँ, तो वही मैं बोल रहा था कि यू कैन चेंज दिस ब्रैकेट, बिकॉज अगर आप ब्रैकेट चेंज करते तो ये हो रहा है। सो दिस टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल, ठीक है। सो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन ओनली इन दिस फॉर्मेट, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, नॉट इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। नाउ जितना भी अभी तक हमने पार्ट देखा है ना, सो विल टेक सम एग्जांपल ऑन दिस, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या अभी तक हमने रीड किया। ओके, अभी सबके पास एक पेज होगा, ये कैलकुलेशन आपको करना है। आई विल नॉट गिव दिस सॉल्यूशन एंड यू हैव टू जस्ट टेल मी द आंसर्स। ओके, सो हियर ए बार इज गिवन, आप एक पेज लेके बैठो बैठो क्विकली, क्योंकि बेस क्लियर है तो ही आपको आगे का टॉपिक समझ में आएगा। इट्स अ लेंथी यूनिट, हमें बेसिक वेक्टर से स्टार्ट करना है और हायर वेक्टर पे जाना है। ओके, so these are the given three vectors. First tell me what is the dot product of first two vectors. करो कैलकुलेट और मुझे बोलो क्या आता है। Do it. Tell me the dot product of first two vectors. Do it. आप ओरली कर सकते हो या अगर आपके पास पेज है तो पेज लेके आप करो, बट आप खुद करो तो ही चीजें समझ में आएगी। Yes. What is value of what is the value of dot product of first two vectors? Yes. 2. कैसे करना है? ए बार का फर्स्ट कंपोनेंट, बी बार का फर्स्ट कंपोनेंट, ए बार का सेकंड कंपोनेंट, बी बार का सेकंड कंपोनेंट, ए बार का थर्ड कंपोनेंट, बी बार का थर्ड कंपोनेंट। सो 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 2 ओनली, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओके, सो दिस आंसर इज देयर, दिस वैल्यू इज 2। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है? सो यहाँ पे मैंने कॉर्नर में फिर से कंसिडर किया। हाँ, अभी आपको नेक्स्ट कैलकुलेट करना है बी बार क्रॉस सी बार। मुझे बस डेफिनेशन बोलो क्या है, व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी बार एंड सी बार, क्या लिखना है आगे मुझे बोलो। डिटर्मिनेंट इन फर्स्ट रो आई जे के आई बार जे बार, यस, -1, ठीक है। सो जस्ट कंप्लीट दिस, I will show that solution is there. Just complete this and that cross product is this. ठीक है, तो अभी आपको ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है। बाकी चीजें आप छोड़ दो, जो अभी मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन उन पे ज्यादा फोकस करो। इफ आई हैव गिवन टू वेक्टर्स, देन फर्स्ट थिंग इज व्हाट, हाउ टू कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट। सेकंड थिंग इज व्हाट, हाउ टू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि ये चीजें मुझे आगे चाहिए। नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। सो बी बार गिवन है और आपको करना है क्या, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस बी बार। सो द फॉर्मूला इज व्हाट, दैट वेक्टर बाय इट्स मॉडुलस, ठीक है। सो व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ दिस बी बार, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ दिस बी बार? बी बार का मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर, नेक्स्ट भी 1 है, 1 स्क्वायर, नेक्स्ट 2, 2 स्क्वायर। So 4 plus 1 plus 1, it is 6. ठीक है, so that vector, so this vector divided by root 6, this is your final answer. ठीक है, so that vector I bar minus j bar, I think there's a plus 2 k bar, ठीक है, ये 2 मिस है बस यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, divided by under root of 6, ठीक है। ओके, तो क्या क्या अभी तक आपने लर्न किया है, डॉट, क्रॉस एंड यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, ए बार एंड सी बार, इन दोनों में आपको एंगल कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू देयर डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉड्यूलस। सो व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर, मैंने एज इट इज ऊपर लिखा है, एंड मॉड्यूलस यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है दोनों का, ए एंड सी का, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ठीक है। नाउ इन न्यूमरेटर जस्ट कंसीडर डॉट प्रोडक्ट, सो 2 with 2, 2 with 1, sorry 2 with 1, 2 with 1, 1 with -1. So this is 2 to -1 and that use the final value which is 1 upon root 3. ठीक है, now how you calculate this, ये क्या है basically, what is this, a bar dot b bar cross c bar, what is this? हाँ, so it's a box product or it is a scalar triple product. Scalar triple product, it means what, कैसे कैलकुलेट करते हो आप ये,
मुझे पहले बोलो इसका आंसर क्या आने वाला है, रियल नंबर आने वाला है, वेक्टर आने वाला है? हाँ, इसका आंसर क्या आने वाला है? रियल नंबर आने वाला है, देयरफॉर वी कॉल इट अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन क्या थी? इट्स अ डिटर्मिनेंट वेर इन फर्स्ट रो जस्ट कंसिडर कंपोनेंट ऑफ ए बार। याद रखो, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज एक्चुअली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीजें आप याद रखो। डॉट एंड क्रॉस ऐसे कॉम्बिनेशन में आता तो इससे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब फर्स्ट का डॉट विद दिस। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। हाँ, ये तो क्लियर हो गया फॉर्मूला। हाँ, नाउ फॉर्मूला तो पता है आपको, दिस इज द फॉर्मूला, दिस ये आप ये कैसे फॉर्मूला भी कैसे आ रहा है, सो लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल। ओके, एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बार विथ सी बार? इट इज एक्चुअली मॉडुलस ऑफ ए बार इंटू मॉडुलस ऑफ सी बार into cos theta, where theta is the angle between these two vectors. Okay, this is the definition of dot product, and that implies cos theta is equal to a bar dot c bar upon modulus of a bar into c bar. तो यहाँ पे a bar dot c bar, तो पहले आपको क्या करना है, a bar जो वेक्टर है एंड c bar जो वेक्टर, इन दोनों का आपको क्या चाहिए? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आपको कैसे कैलकुलेट करना है? कंपोनेंट वाइज बस मल्टीप्लाई करना है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 1 इज एक्चुअली 2, तो यहाँ पे पहले 2 आ जाता है। नेक्स्ट दिस 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 1, तो यहाँ पे 2 आ जाता है। नेक्स्ट इज 1 मल्टीप्लाई बाय दिस -1, यहाँ पे -1 आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए बार। ए बार का आपको मॉडुलस कैलकुलेट करना है, विच इज अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ सी बार विच इज 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर। सो दिस इज योर कॉस थीटा। इसके आगे क्या करना है? हाँ सर, वो एक पार्ट रह गया। दिस इज सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? 1/√3। आपको चाहिए था एंगल, सो दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3। हो गया, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए बार एंड सी बार। इज दिस क्लियर नाउ? हाँ, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आप याद रखो। इफ ए बार इज इक्वल टू A1 इंटू आई बार, A2 इंटू जे बार प्लस A3 इंटू के बार, तो मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्या होता है? इट इज अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। इट्स अ डेफिनेशन, इट्स अ डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। ओके, एनी अदर डाउट? ओके, हाँ, मे बी डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए शायद ये 11th-12th में नहीं हुआ था। ओके ओके ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। नाउ नेक्स्ट इज दिस डॉट एंड क्रॉस, दिस वी कॉल इट एज बॉक्स प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसको कैसे डिफाइन किया है? इट्स एक्चुअली डिटर्मिनेंट। ओके, जो आपका फर्स्ट वेक्टर है उसके कंपोनेंट यहाँ पे आपको मेंशन करने फर्स्ट रो में। तो ए बार के कंपोनेंट क्या है? 2 2 1। नेक्स्ट बी बार आता है, बी बार के कंपोनेंट क्या है? 1 -1 2। सी बार के कंपोनेंट क्या है? 1 1 एंड -1। ये आप कैलसी में सॉल्व करो या डायरेक्टली इसे मैन्युअली सॉल्व करो, दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। ये पहले याद रखो, ये दिस पैटर्न इज कॉल्ड अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय दिस लॉजिक। ओके, कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ थर्ड वेक्टर। ठीक है, सो लेट मी शो यू दैट सॉल्यूशन। ठीक है, एंड जस्ट सॉल्व दिस डिटरमिनेंट दैट वैल्यू इज 6। ओके, हाँ, पहले मैं रिपीट करता हूँ कि क्या क्या हुआ है। So in last minute, I will quickly revise this and then we'll stop. Okay. So अभी तक बेसिकली आपको क्या याद रखना है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इफ ए बार इज योर गिवन वेक्टर A1 इंटू आई बार प्लस A2 इंटू जे बार प्लस A3 इंटू के बार। एक और वेक्टर ले लेता हूँ मैं रैंडम, बी बार इज इक्वल टू B1 इंटू आई बार प्लस B2 इंटू जे बार प्लस B3 इंटू के बार। क्या क्या अभी तक हमने देखा है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। First is dot product. Side by side, you can put your roll number in chat box.
सो ए बार डॉट बी बार कैसे कैलकुलेट होता है ये डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दैट डेफिनेशन इज व्हाट, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ये फर्स्ट डेफिनेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट इन दो वेक्टर के लिए। तो क्या होता है वो, इट्स एक्चुअली डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो में आ जाएगा आई बार जे बार के बार, सेकंड में क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट मतलब ए बार डॉट बी बार इक्वल टू, एंड सेकंड रो में ए बार के कंपोनेंट आ जाएंगे लाइक से A1 A2 A3, एंड थर्ड रो में बी बार के कंपोनेंट आ जाएंगे B1 B2 एंड B3। ठीक है, हाँ ये हो गया। नाउ इन जनरल, तो ये डायरेक्टली वेक्टर से मैंने लिखा है, बट इन जनरल डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, इट इज मॉड्यूलस ऑफ ए बार इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। तो आप ये भी डेफिनेशन यूज कर सकते हो, या अगर आपके पास वेक्टर है तो आप ये भी डेफिनेशन यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी आप यूज करो, इट डिपेंड ऑन यू। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ये एक डेफिनेशन है, एंड देयर इज वन मोर डेफिनेशन विच इज मॉड्यूलस ऑफ ए बार इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। बट ये डिफिकल्ट होगी क्योंकि यहाँ पे एन कैप आपको कैलकुलेट करना, बाकी चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, तो ये भी एक डेफिनेशन है फॉर अ क्रॉस प्रोडक्ट। एंड यहाँ से फिर आपको एक और रिजल्ट मिलता है, दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज कैलकुलेटेड बाय देयर डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉड्यूलस। दिस इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। ये एक फॉर्मूला था। और क्या क्या लर्न किया हमने, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हाँ यस बोलो, मॉडुलस प्रोडक्ट किसका है, मॉड्यूलस ऑफ सेकंड। पहले का मॉड्यूलस कैलकुलेट करो, अगर वो 2 आता है मल्टीप्लाई बाय सेकंड का मॉड्यूलस, अगर वो 3 आता है सो 2 इंटू 3।